Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So we are actively preparing for SBI Junior Associate Main and RBI Assistant Main. Now it is very difficult to concentrate in such uncertain time when we are not clear when exam will happen and many negative news are flowing from here and there. But ultimately this is a test of patience. The people who will not be diverted, remain cool and remain focused will be the ultimate winner. Because as an aspirant for job, what is my role? I cannot change the circumstances. But yes, I can work hard in these circumstances and get clear of others. And that is our focus in all our videos, to encourage you, to motivate you, to remain focused, because these things will get you the job. When things will be normal, when exam will be held, we all will realize that this period of uncertainty and our focus on study was the only right approach that has helped us to get this job. So today we will attempt the second mock test from SBI Junior Associate Main 2020. Link is available in description and comment column. Many of you have already subscribed this mock test on my recommendation. Still, there may be some people, those have not subscribed till yet. My advice to all of them is to subscribe this mock test today itself. It is a very good mock test. It will certainly help you in identifying your weaknesses and prepare effectively for the examination. Because mock test plays very crucial role in our selection besides so many other factors. So if you have yet to subscribe it today, because it is very reasonably priced at 599 rupees for 1 year. That means cost is not even 50 rupees a month. And if we incur this cost, that means we are able to identify our weak areas. So after attempting the second mock test, you will identify your weak areas. That means first you will go through the solution part of it, then analysis part of it, and spot your weak areas. Spotting weak area is the most important technique in preparation, because time is limited. So if we go on reading those areas where I am already strong, is not going to help you. But if you are able to focus your study towards the area where you are weak, you can convert those 0 marks or minus marks into positive marks. And every addition of single mark in your performance is a step towards success. You must have observed that many people, they miss the cutoff merely by 1 mark, merely by 2 marks, merely by 3 marks. So that means any addition in mark is a step closer to success. And how this mark will be added in my tally? If I focus and read those topics where I am weak. A person can be weak in profit and loss, a person can be weak in speed, a person can be weak in mixtures, a person can be weak in you can say permutation combinations, a person may be weak in puzzles, a person may be weak in sitting arrangement, a person may be weak in some other area, a person may be weak in English in certain areas. So identifying our weak areas, channelizing all our energy towards study in that, and that too from basic textbooks. Basic textbooks means for grammar, we can read a good grammar book. For quantitative, we can read the basic textbooks where these chapters are discussed and we can have a conceptual clarity. From reasoning also, we can lay hand on certain books where such topics are discussed, how to solve such type of questions. So more conceptual clarity you will have, more your chances of selections are there. So the study means, preparation means achieving more and more conceptual clarity.
There are certain concepts that is being asked in the examination. More and more topics I am conceptually clear, more and more are my chances of selection. So after this you will devote some time towards the general awareness paper. So half an hour you should spend on current affairs. For current affairs I have given you a very good source, a PDF link I have given. If you have not subscribed, subscribe it today. For banking awareness, I have given you a link of my playlist of videos. Watch 5 to 10 videos daily. It will enhance your knowledge in banking, financial and economic. Then another playlist link I have given, current news, important news in the area of banking, finance, economics, from where many question comes. Just watch those videos, jot down those things. It will help you in getting the exam cleared. Then after identification of these weak areas, the next 2 days you will spend exclusively on these weak areas, and what you should do tomorrow and day after. I will be uploading videos in these days. Just follow the daily schedule given in my videos. It will make regularity, it will make you focused, and it will take you towards success. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. SBI जूनियर एसोसिएट और RBI असिस्टेंट मेन की हम तैयारी कर रहे हैं. ये बहुत ही कठिन वक्त है हम सब के लिए, क्योंकि जब डेट सर्टन नहीं होती तो फोकस करना, पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है. पर यही जो वक्त है, जरूरी होता है कि हम अपने को फोकस करें. जब एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, जब एग्ज़ाम्स की डेट आ जाएंगी, तो हम ये पाएंगे कि जो इन दिनों के अंदर हमने अपनी एनर्जीज फोकस रखी थी, हमने ध्यान इधर उधर नहीं किया था, यही हमारे काम आया. क्योंकि बहुत खबरें ऐसी होंगी जो हमारी अटेंशन को भी डाइवर्ट करेंगे. मैंने कमेंट्स भी कई लोगों के पढ़े हैं जिसमें लोग कहते हैं सर 2-3 दिन से खबरें पढ़ के हमने पढ़ाई छोड़ दी थी, अब पढ़ाई फिर शुरू कर ली है. जो भी वक्त हम जाया करते जा रहे हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. पर जो लोग इस वक्त को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है इवेंट्स को कंट्रोल करना, पर हमारे हाथ में है अपनी पढ़ाई को जारी रखना. तो हमें वो काम करना है जो हमें करना है. बाकी जो अदर लोग हैं वो अपना काम करेंगे, कैसे एग्ज़ाम कराना है, कहाँ एग्ज़ाम कराना है, क्या क्या सावधानियों के साथ एग्ज़ाम कराना है, वो सब डिपार्टमेंट लगे हुए हैं अपना अपना काम करने में. उनको करने दीजिए, उस पर अपनी एनर्जीज मत वेस्ट कीजिए. अपनी एनर्जी आप इस पे फोकस करिए, मैंने कैसे पढ़ाई करनी है. तो आज आप सेकंड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे SBI जूनियर एसोसिएट मेन वाले सेट से. अधिकांश लोगों ने ये मॉक टेस्ट ले लिया है जो मैंने सजेस्ट किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में है. फिर भी कुछ लोग हो सकते हैं जो बाद में हमारे चैनल को ज्वाइन किए हैं या जिन्होंने अभी तक ये मॉक टेस्ट नहीं लिया है, उनको मैं एक बार फिर दोबारा ये एडवाइस करूँगा कि वो आज इस मॉक टेस्ट को ले लें, क्योंकि आपको ये बहुत मददगार साबित होने वाला है. और एनुअल प्लान अगर आप लेते हैं 599 में, तो आपकी कॉस्टिंग सिर्फ 50 रुपये महीना आ रही है. और इसके अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट अवेलेबल हो रहे हैं, और इन मॉक टेस्ट के थ्रू ही आप अपनी कमियों को ढूंढ पाते हैं. और अगर आप अपनी कमियों को ढूंढ पाने में कामयाब होते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी स्टडी प्लान बहुत ही एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बन जाएगा. होता क्या है, कई बार हम उन एरियाज़ पे भी टाइम लगाने लगते हैं जहां हम ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, उससे कोई नंबर ऐड नहीं होते हैं. अगर हम देखेंगे कि जो लोग सक्सेसफुल हैं या अनसक्सेसफुल में, उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है. जो आदमी पास नहीं कर पा रहा है या जो कैंडिडेट नहीं कामयाब हो रहा है, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पिछड़ा हुआ है या उसको कुछ नहीं आता है. ऐसा नहीं होता. सिर्फ वो कोई 1 नंबर से रह जाता है, कोई 1.5 नंबर से रह जाता है, कोई 2 नंबर से रह जाता है, कोई 3 नंबर से रह जाता है. तो यदि हम ये नंबर अपने बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम भी सक्सेसफुल की लिस्ट में आ जाते हैं. और नंबर कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं. और कहाँ पे हमारे नंबर नहीं आ रहे? जो हमारे वीक एरियाज़ हैं, जो वो एरियाज़ हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं कि शायद ये कभी ठीक हो जाए क्वेश्चन, पर अपने आप ठीक नहीं होता है. उसको हमें पढ़ना पड़ेगा, उस एरिया को हमें समझना पड़ेगा, उस कंसेप्ट को हमें क्लियर करना पड़ेगा. तो मॉक टेस्ट हमारी मदद करता है उन एरियाज़ को ढूंढने में जहां हम कमज़ोर हैं. तो जब हमने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया, उसके बाद हमने सोल्यूशन देखा, उसके बाद एनालिसिस देखा,
कुछ चीज़ें हमें समझ आ गई, मगर अभी भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हुई। तो जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं उन टॉपिक्स को मुझे नोट डाउन करना है कॉपी में, और 2-3 दिन हमें उसी पे फोकस करके उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी? जो बेसिक बुक्स हैं। मान लो प्रॉफिट लॉस नहीं आता, जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है वो मुझे समझाएगा प्रॉफिट लॉस कैसे करते हैं। स्पीड में मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, स्पीड का चैप्टर मुझे पढ़ना है। मुझे सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आता, मुझे सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर पढ़ना है। मुझे पजल सॉल्व करनी नहीं आती, मुझे पजल का चैप्टर पढ़ना है। मेरी इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहे, मेरे को ग्रामर को इम्प्रूव करना है। ग्रामर मदर है हर चीज़ की, लैंग्वेज की। तो अच्छी ग्रामर बुक पढ़नी है, वो चैप्टर पढ़ना है जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्टेड है। तो असली तरीका पढ़ाई का क्या है? अपनी कमियों को ढूंढना और उन कमियों वाले एरियाज को टेक्स्ट बुक से पढ़ के अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अचीव करना। जितने आप कंसेप्चुअली क्लियर होते जाएंगे उतना आपके एग्जाम में नंबर बढ़ते जाएंगे। प्रिपरेशन का मतलब ही है हमें अपने को कंसेप्चुअली स्ट्रांग करना है। जो कंसेप्ट्स में हम वीक हैं उनको भी हमें स्ट्रांग एरिया में कन्वर्ट करना है। और जिस दिन हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी एग्जाम के लेवल से ऊपर पहुंच गई, हम सारे कट ऑफ पार करेंगे। आपने देखा होगा कई कैंडिडेट है 5-5, 6-6 एग्जाम पास किए हुए हैं। कैसे हो गया ये? एक साल पहले एक भी पास नहीं हो रहा था, अगले साल 5 पास हो गए, क्योंकि अब उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी हो चुकी है कि वो हर एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपने क्या करना है? जनरल अवेयरनेस पे भी स्ट्रेस करना है। जनरल अवेयरनेस के लिए आपने क्या करना है? आधा घंटा करंट अफेयर पे लगाइए। अच्छा पीडीएफ मैंने आपको सजेस्ट किया करंट अफेयर के लिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। बैंकिंग अवेयरनेस के बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसके मैंने वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको दे दी है। 5 से 10 वीडियोस डेली देख लीजिए। 188 वीडियोस हैं आपके, 18 दिन में सारा कुछ कवर हो जाएगा। इसके बाद करंट इवेंट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो भी बैंकिंग के करंट इवेंट्स होते हैं, फाइनेंस के करंट इवेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स के करंट इवेंट्स होते हैं, उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसकी भी वीडियोस का लिंक मैंने आपको दे दिया, उसको भी आप देख लीजिए। 5 वीडियोस रोज के। अगर हम सिस्टमेटिक वे से तैयारी करेंगे, देखो इन वीडियोस का पर्पस क्या है? आपकी एक डायरेक्शन तय कर देना, आपको एक रास्ता दिखा देना। यदि आप इस शेड्यूल को डेली फॉलो करते रहते हैं तो आप राइट डायरेक्शन में पढ़ाई करते रहते हैं और अल्टीमेटली कामयाब हो जाते हैं। जैसे हमारे अधिकांश सब्सक्राइबर्स कामयाब हो गए और उन्होंने सक्सेस स्टोरीज भी अपनी बताई आप लोगों को। तो गॉड ब्लेस यू ऑल।